Hello, welcome student. You are watching of just on chapter 5, namely what? Light. Okay. So first of all, I want to introduce on a light. Suppose if you enter into a dark room, then can you see any object surrounding you? No, because when you enter into a dark room, then you cannot see any object. But when we switch on the light, then we can see everything that surrounds us. So this happens due to the presence of light. So now the question arises, what is light? Light means it is a form of energy that helps us to see the whole world that around us. In other words, we can say light is a form of energy which gives us the sensation of what? Sight. So now sources of light. ये जो लाइट है ये हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? तो I means any object which produce light is a source of light. They may be natural or artificial. So what are the natural sources of light? Those sources of light which occur in nature, जो प्राकृतिक की देन है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. एज फॉर एग्जाम्पल सपोज सन, स्टार्स, जो सूरज है, जो तारे हैं, ये क्या है? नेचुरल है, क्योंकि इनकी अपनी रोशनी होती है. ये प्राकृतिक की देन है, इसे हमने नहीं बनाया बल्कि ये भगवान ने बनाया है. सो दे नेचुरली emit light of their own. Okay. Some organisms, say firefly, jugnu. Okay. They are the bioluminescent. Bioluminescent means those organisms which can produce their light. How? By the chemical reaction within their body. It's called bioluminescence. Okay. So they are also a natural source of light. So next is the artificial source of light. If a question arises, what do you mean by artificial source of light? Then we can say the source of light which are made by man, which are made artificially, is called artificial source of light. Like for example, suppose candle, electric bulb, torches. Okay, so they are all made by the humans. Clear? So next is the eco corner artificial lighting, means such as a street light. It causes the light pollution and can be harmful to the wildlife. Excessive light at night affects the natural internal clock of the many nocturnal organisms. So what do you mean by nocturnal organism? Nocturnal organism means which are active during night, जो रात को निकलते हैं. So they can change the pattern of behavior. Okay. The hatchling of the sea turtles are guided to the water of the sea by the gleam of the water in moonlight. So artificial lights mislead these animals as well as many insects, frogs, birds, bats, and so on. So object may be either luminous or non-luminous. If a question arises, what do you mean by luminous? Luminous means those objects which can produce the light of their own, जिनकी अपनी रोशनी होती है, उनसे रोशनी निकलती है, उनको क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. और जिनमें से नहीं निकलते इसको कहेंगे नॉन ल्यूमिनस. those objects which cannot produce the light of their own is called non-luminous. देखो किताब, चेयर, टेबल, इनमें क्या लाइट है? इनमें से लाइट निकलती है? नहीं. तो क्या हम चांद को ल्यूमिनस बॉडी बोल सकते हैं क्योंकि वो रात को दिखाई देता है? नहीं. मून इज ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. फिर वो रात को दिखाई देता है, ऐसा क्यों? दिस इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम द सन. क्योंकि जो सूरज की जो रोशनी होती है वो चांद पे पड़ता है, तो वो टकराने से वो वापस फिर कहाँ आती है? पृथ्वी पे आती है. इसलिए हमें रात को चांद दिखाई देता है.
मान के चलो कि इफ द मून हैज इट्स ओन लाइट, अगर चांद के पास अपने रोशनी होती तो फिर कभी भी चंद्र ग्रहण लगता ही नहीं। अगर चांद के पास अपना लाइट होता है तो हमें सारा दिन यानी कि रात को हमें चांद दिखाई देता, तो फिर चंद्र ग्रहण लगने का कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन ऐसे नहीं होते। तो यहीं से साफ समझ में आता है कि मून क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ओके, अभी हम बात करेंगे प्रोपागेशन ऑफ लाइट। प्रोपागेशन ऑफ लाइट का मतलब है कि लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल। लाइट को सफ़र के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम एज वेल एज थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लाइट जो है वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, या वैक्यूम हो, खाली जगह हो, स्पेस हो, उसमें से वो ट्रैवल करती रहती है। लेकिन बट इट डज नॉट पास थ्रू ऑल द मटेरियल इन द सेम वे। हर एक के बीच में जो लाइट जो पास करने की जो एबिलिटी है सब में एक जैसे नहीं होते। उसी के आधार पे हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपैक। What do you mean by transparent? Transparent means what? Those substances which allow the most of the light to pass through them. ऐसे चीजें जिनमें से अधिकतम जो लाइट है उसको वो पास करवाती हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट। जैसे हम बोलेंगे गिलास, सेलोफेन, क्लीन एयर और वाटर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसल्यूसेंट। तो ट्रांसल्यूसेंट मीन a material or the substance which allow a part of light, not a whole light. Okay, कुछ जो लाइट का जो पार्ट है उसी को वो मतलब पास करवाती है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। एग्जाम्पल जैसे हम बोलेंगे फ्रॉस्टेड गिलास, ग्राउंड गिलास, बटर पेपर, ट्रेसिंग पेपर, ये सब क्या है, ट्रांसल्यूसेंट है, इसमें पूरी लाइट पास नहीं होते। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओपैक मटेरियल। तो ओपैक मटेरियल मीन दो सब्सटेंसेस विच डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम। ये वो सब्सटेंस है जो लाइट को पास होने देते ही नहीं है, इसलिए हम लोग को क्या बोलेंगे, ओपैक। जैसे पत्थर, लकड़ी, प्लाई, दीज आर द ओपैक बिकॉज दे डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम, दे ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट व्हाइल इट ट्रेवल्स। ओके, वो लाइट को क्या कर देती है, रोक देती है, वो आगे जाने नहीं देती है। आप अगर लाइट के सामने खड़े हो जाओगे तो सारी लाइट आपके बॉडी से टकराएगी, वहीं रुक जाएगी, वो लाइट आर पार नहीं होगी। तो इसका मतलब आपकी बॉडी क्या हो गई, ओपैक। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, ये जो ओपैक जो है, ओपैक होने के चलते ही हमें दूसरी जगह क्या फॉर्म करता है, शैडो फॉर्म होते हैं, ये हम बाद में बताएंगे। अभी हम बात करेंगे रे ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट का मतलब है इट इज नैरो स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट, इज कॉल्ड रे ऑफ। मतलब मान के चलो सपोज इफ यू टेक ए बल्ब, स्विच ऑन, अब बल्ब को ऑन करोगे तो पूरी लाइट, पूरी रोशनी कमरों में क्या होगा, रोशनी से भर जाएगी। लेकिन बट इफ यू कवर विद ए पेपर, थिक पेपर, ब्लैक कलर का जो आर्ट पेपर, उसको आप कवर कर दो, वहां से एक छेदा करो। When you make a hole, then you will see a light can pass through a hole. तो आप देखोगे एक लाइट की एक किरण दिखाई देगी, वो जो एक किरण है दैट इज नैरो स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रे ऑफ लाइट। अगर आप 4-5 छेदा करोगे तो 4-5 किरण निकलेंगे। ये जो ग्रुप ऑफ जो लाइट रे है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट। तो बीम जो है वो 3 तरह के होते हैं, एक होता है पैरेलल बीम, दूसरा होता है डाइवर्जेंट बीम, तीसरा होता है कन्वर्जेंट बीम। तो पैरेलल बीम का मतलब क्या हुआ, इट इज ए बीम ऑफ लाइट दैट आर पैरेलल टू ईच अदर। ये ऐसे लाइट है जो एक दूसरे से क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। जैसे जो सूरज की जो लाइट है वो जो आती है धरती पे, वो सब किस में आते हैं, पैरेलल में आते हैं। ओके, फिर आ जाओ डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब ये हो गया कि एक पॉइंट से किरण क्या हो जाती है, फैल जाना। ए डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट है रेज दैट स्प्रेड आउट फ्रॉम ए पॉइंट। एक पॉइंट से किरण क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है। एक पॉइंट यहाँ से किरण क्या हो रही है, देखो फैल रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जैसे टॉर्च जहाँ पे जलाएंगे तो लाइट पूरी जगह फैल जाती है, इसलिए ये क्या होगा, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट।
कन्वर्जेंट में क्या होता है, सारे जो रे ऑफ लाइट है सारे एक जगह में आके एक पॉइंट में आके मिल जाती है। जैसे हम बात करेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास, जो मैग्नीफाइंग ग्लास है अगर हम हाथ के ऊपर में ऐसे रख, जो हस्तरेखा देखते हैं ना पंडित जी, तो वो जो अगर इसमें अगर हम करेंगे तो सारी जो लाइट है सूरज की लाइट वो एक बिंदु में आ जाती है। तो अगर वो कागज के ऊपर गिरते तो कागज को वो जला देती है। इट कैन बर्न अ पीस ऑफ पेपर। ओके, तो ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट हो जाती है। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट आ जाओ, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। तो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ, सपोज मीन द लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन का मतलब लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, सपोज इफ यू शट द डोर एंड विंडो एंड टर्न ऑफ द लाइट टू मेक द रूम एज डार्क एज पॉसिबल। आप दरवाजा खिड़की बंद कर दो, लाइट बंद कर दो तो पूरा रूम क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगी। देन ओपन ए विंडो, अब थोड़ा सा विंडो ओपन कर लो सो दैट थिन बीम ऑफ लाइट एंटर, थोड़ी सी जो लाइट की जो किरण है वो अंदर घुस जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू कैन सी दैट द लाइट दैट स्ट्रीम इनटू अ डार्क रूम और फ्रॉम बिटवीन द लीव्स ऑफ इट कैनोपी, जो जंगल में दिखाई देते हैं तो इस तरह का लाइट वो दिखाई देती है। और फ्रॉम बिटवीन द लीव्स ऑफ द ट्री हैज ए स्ट्रेट नैरो पाथ, को कैसे दिखाई देता है, नैरो पाथ में दिखाई देते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है लाइट का दैट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। फिर हम बात करेंगे लाइट का जो स्पीड है एयर में, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वी कैन से द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, अब हम बात करेंगे हाउ विल यू प्रूव दैट द लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक 3 cardboard और 2 cardboard and you have to place the similar cardboard, okay, having the same size. You have to put a hole in the middle of the cardboard. बीचों बीच में आप क्या करोगे, छेदा कर लो। उसके बाद आप क्या करोगे, you have to take the mid size, take a candle having the mid size of the कार्डबोर्ड। ओके, तो मिड साइड ऑफ द कार्डबोर्ड के हिसाब से आप कैंडल ले लो, मोमबत्ती जलाओ। यू हैव टू प्लेस द कार्डबोर्ड वन आफ्टर अदर। ओके, यू हैव टू जस्ट फ्यू डिस्टेंस फ्रॉम इच अदर। देन इफ यू सी ऑन द अदर एंड ऑफ द साइड ऑफ द कार्डबोर्ड यू कैन सी दैट द लाइट ऑफ द कैंडल वेरी क्लियरली, दिस मीन दैट कि लाइट आपको आराम से दिखाई देगी। इसका मतलब ये हो कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप छेदा ऊपर नीचे करते हो तो फिर आपको वो रोशनी दिखाई नहीं देगी। और एक तरीका है, अगर आप एक सीधा पाइप ले लो और एक कर्व टेढ़ा पाइप ले लो, कर्व पाइप। सीधा पाइप लेके अगर मोमबत्ती सामने रखोगे तो आपको लाइट दिखाई देगी, तो आप समझ जाइएगा कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर आप गोल पाइप लेकर देखोगे तो आप लाइट को नहीं देख पाओगे, तो आप समझ जाइएगा कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। तो ऐसे बहुत सारे नेचुरल जो फिनोमेना है जो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट के होते हैं, जैसे डे एंड नाइट ऑकर बिकॉज लाइट फ्रॉम द सन फॉल्स ओनली ऑन द साइड ऑफ द अर्थ दैट फेसेस इट। जिस तरफ धरती सूर्य की लाइट फेंकती तो वहाँ पर क्या होता है, दिन, और दूसरे साइड में क्या होती है, रात होती है। शैडो आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय इट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, ओपैक ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक कर देता है तो दूसरी तरफ क्या फॉर्म होती है, शैडो। नेक्स्ट, जब हेवनली बॉडी एक दूसरे के ऊपर में आते हैं, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स, व्हेन सन, अर्थ एंड मून कम इन अ स्ट्रेट लाइन। जब चांद, पृथ्वी और सूरज एक लाइन में आते हैं तब जाके क्या होता है, ग्रहण लगता है। नेक्स्ट, पिन होल जो कैमरा है उससे भी इमेज फॉर्म करता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो आज बस इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी हैव टू डिस्कस ऑन पिन होल कैमरा वर्किंग एंड इट्स कंस्ट्रक्शन। ओके, सो आई होप सो you have to understand very clearly. Hope you we will meet you in the next class. Okay, bye bye.